Hello, good morning, FI students. Shall we start? Mike, Mike. Okay. So today I'm going to discuss the upward communication. In the last week or in the last lecture, we were discussing about the downward communication. That upward communications means what? That communication is very important part of working in the business environment, and managers must be able to communicate with the employees, and the employees must be able to communicate with the manager in order to have the profitable business. Upward communication is the flow of information from frontline employees to the managers, supervisors, and directors. So that upward communication is very important in the business ethics or in the business environment. So whenever that communication or the conversation or the interaction between from top line to bottom line, this is called that upward communication, that the manager must communicate with the employees and the employees must communicate with the मैनेजर्स. तो यहाँ पे जब आपको बताया जाता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में ऊपर से नीचे तक कि जो टॉप लेवल में जो हम बोलते हैं कि जो बॉस है, उसके बाद आता है जो मैनेजर है, सेक्रेटरी है, सुपरवाइजर्स है, डायरेक्टर्स है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लास्ट में आते हैं. तो उनका जो इंटरेक्शन जो एम्प्लॉयज़ के साथ होता है तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं. दैट नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन. तो उसका एडवांटेजेस क्या हुआ? दैट एडवांटेजेस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, द फर्स्ट पॉइंट इज upward communication keeps the manager aware of how employees feel about their jobs, policies, procedures, and the business in the general. That whenever we are talking about the upward communication, in upward communication, the manager keeps aware, or the manager is aware that how the employee should feel about their job, policies, procedure and the business in general. For example, जैसे हम शॉप की बात करें या कोई धंधे की बात करें, तो जिस तरह से जैसा उसका ओनर होता है, ओके, जो दुकान का मालिक होता है, तो वो उसका जो सोचने का तरीका है वो अलग है अपनी दुकान से लेके. पर उसके साथ जो हम बोलते हैं कि जो काम करने वाले एम्प्लॉय रखे गए, तो वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनका पॉलिसी क्या है, उनका जॉब्स क्या है, अगर वो जॉब के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये मैनेजर को पता रहता है या उस ऑनर को पता रहता है. दूसरा देखते हैं, द फीडबैक. Managers can get the feedback from the employees that can help they improve organizational development. Employees who are encouraged to provide feedback feel respected and that they have say in how organization is run. So that is the thing, that manager, that feedback is necessary whether it is positive or whether it is negative. So here we can say that the manager always get the feedback from the employees, so they can improve themselves, they can improve their structure, or they can improve the structure of the work in the organization. Okay, the next point is the mutual trust. That mutual trust bring the employees and manager closer to each other. Yes, that trust is very necessary between the relationship between that working side, whatever, whenever you are working or something in the home also, the trust is necessary. That mutual trust brings employees and manager close to each other. Okay, the person who are working in the organization, the person who are working in the firm, they are working in the same position. If they are not working in the same position, but though they have that mutual understanding with which they can communicate with each other, they can try to solve the problems of others. As trust grows, the relationship between the employee and the manager becomes stronger. As we know that this is the simple thing, that as the trust grows, the relationship should be very good. Otherwise, what happen if the trust will not be there? The relationship will not be
very good at that time. The next point is, आगे देखते हैं, introduction of new policies that frontline employees do the work every day. They can usually tell the manager if something works or doesn't work. Employees can be instrumental in the forming in new policies or changing those that are outdated. Okay, so here, whenever we are talking about the upward communication, that new policies are always included in the upward communication. And the front line means those who are the toppers. For example, those who are the toppers means what we can say, that toppers means that boss, manager, executive, CEO. So this person always work every day, and they usually tell the manager that if the work is doing properly or not. If an employee, whenever we are talking about the employee, that sometimes the employee change their attitude and change that they are outdated. Suppose new instrumental policies will be included. Sometimes the employee doesn't, sorry, employee do not pay attention there. The next point is increase the mutual trust. इंक्रीज द म्यूचुअल ट्रस्ट मीन्स उसका मतलब क्या है, द म्यूचुअल ट्रस्ट के हमने बारे में बात किया था। अभी यहाँ पे क्या बताए, अपवर्ड कम्युनिकेशन कैन इंस्टिल द सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द अपर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज. This is because the lower level employees trust that the company official will consider their suggestion. In the contrast, the upper manager believes that the employees use this direct communication method to proactive and positive. तो जब भी अपवर्ड कम्युनिकेशन का बात होता है तो उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो चाहे मैनेजर या लोअर मैनेजमेंट में हो, अपर मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट में हो, या अपर मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज़ में हो, या लोअर मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज़ में हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको ऐसा पता है कि हाँ अभी उनका सपोज सजेशन लिया जाता है तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो भी काम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और काम और अच्छी तरीके से किया जाता है अगर उनका सजेशन लिया जाता है। अब दूसरी ओर से सोचे कि जब हम अपर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अपर मैनेजमेंट में ऐसे सोचते हैं कि हाँ अभी ये जो एम्प्लॉई हैं, ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको वो पॉजिटिव से लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, company executive allows employee to give feedback or advice during the company wide meeting. They trust that their employees take the opportunity to make honest suggestions, while employees trust that the upper management will use their ideas to improve the company. तो यहाँ पे एक कंपनी एग्जीक्यूटिव का आपको एग्जांपल दिया है, जो यहाँ पे बताया गया है कंपनी एग्जीक्यूटिव allows the employee to give the feedback whether it is positive negative, but honestly what they are giving the suggestion, it will be consideration, it will be considered. And on the other side, when the employee trusts that yes uh, uh, their suggestions are considered, at that time the upper management will also use their ideas to improve the कंपनी। सो लेन देन दोनों के साइड से होते कि फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना आइडिया का सजेशन दिया, इन्होंने वो आइडिया का सजेशन दिया, तो दोनों तरफ से वो काम कैसा होगा, अच्छा होगा। ओके, आगे देखते हैं। ये देखिए, improve the workplace procedure, that using the upward communication creates that opportunity for improvements to the workplace procedure and consequently workplace productivity. For example, an employee notices that the delay in the communication between upper and the lower management limits the amount of time they have complete the marketing campaign for the company. They suggest the direct email channel where upper management can send information directly to the marketing team. This action has increased the productivity by 25%. अभी इसमें क्या बताया गया है कि
that using upward communication which creates the opportunity of improvements of the workplace procedure. Okay, they are taking suggestions, the employees are also giving suggestions, so the work is going to be very smoothly. Okay, then for example यहाँ पे पता है an employee notices that the delay in communication between upper and lower management limits the amount of time they have to complete the marketing campaign for the company. Means that employee, as an employee, he also thinks that or she also thinks that if the communication between lower management and upper management is delayed, then they are not working or they are delaying something that which is going on in the market, suppose which is more important for the company, that in the recent time they have to take the decision very quickly. ओके यहाँ पे और ऐसा बताया गया है कि अगर अपर मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट में कि डिसीजन लेने में कोई भी डिले हो रहा है तो जो अभी कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए एज ए एम्प्लॉय के तौर पे ये एम्प्लॉय सोच रहा है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो डिसीजन डिले हो जाते हैं तो कंपनी को मार्केट में टिकाए रखने के लिए मार्केट के साथ चलना पड़ता है, तो ये एम्प्लॉय सोचता है, तो अपर मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट का जो डिसीजन होना चाहिए वो डिले नहीं होना चाहिए. दे सजेस्ट द डायरेक्ट ईमेल चैनल where upper management can send information directly to the marketing team. तो एक एम्प्लॉय क्या सजेस्ट करता है कि उनको जो ईमेल चैनल है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपर चैनल जो अपर मैनेजमेंट काम करता है उस पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मार्केटिंग को ही भेजा जाए कि उनके अभी मार्केट का क्या पोजीशन है, क्या नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो डायरेक्ट अपर मैनेजमेंट भेज सकता है. सो दिस एक्शन हेल्प्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय 25%. कि अभी जो इसकी वजह से ये जो मेथड है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है. तो फॉर एग्जांपल अपर मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट की यहाँ पे बताया गया कि अपर मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट में डिले होगा तो मार्केट के साथ वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे. ओके लेकिन कभी कभी एम्प्लॉई भी ऐसा सजेशन दे सकता है कि हाँ डायरेक्टली अपर मैनेजमेंट ही क्या इंफॉर्मेशन भेज दे कि अभी मार्केट का पोजीशन क्या है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी में 25% बढ़ती हो सकती है, ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ज़्यादा भेज सकते हैं. Makes employee feel valued. That upward communication encourages the employees to communicate directly with the upper management. Yes, that upward communication क्या करता है, employees को क्या करता है, directly upper management के साथ बात करने के लिए आपको encourage करता है. This creates a sense of value in the employees since they realize that the upper management cares about their input, especially when they make changes in the response to the employee suggestion. So that whenever the upper management giving too much respect to the employee, that the employee also think that the management upper management also care about their input, and when they make some changes means as the employee then they make them some changes in response to the employee's suggestion. So here the two way of communication we see here. Okay, कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर अपर मैनेजमेंट उनको चांस देता है एम्प्लॉय को बोलने के लिए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक उनका जो हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. दूसरा होता है कि उनमें उनको रियलाइज होता है कि हाँ हमारे आइडियाज़ को, हमारे थॉट्स को, हमारी सोच को यहाँ पे कुछ न कुछ कंसिडर किया जाता है. ओके और जब भी कि उसमें कुछ फॉर एग्जांपल उन्होंने सजेशन किया और सजेशन ठीक नहीं हुआ तो अपर मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों का जो बोलते हैं कि रिलेशन वो क्या होगा, बॉन्ड, उनका रिलेशन क्या होगा, जो रिलेशनशिप बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, बेहतर होगा. फॉर एग्जांपल an employee wishes that the upper management would make more of an effort
to engage with the lower level staff. ओके, कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है कि उसको क्या सजेस्ट करता है कि उनकी क्या इच्छा है कि जो अपर मैनेजमेंट में जो काम करते हैं तो उनको लोअर लेवल के साथ के जो स्टाफ होता है उनके साथ भी एंगेज रहना चाहिए. दे वॉइस देयर कंसर्न टू द डायरेक्ट मैनेजर who then discusses this issue with the company official. Means whatever the problems create in the lower level staff, they can discuss directly to the upper management. A month later, upper management creates an email newsletter highlighting how the efforts of lower level employee contribute to the organization. So एक मंथ के बाद या एक महीने के बाद कि शायद अपर लेवल जो अपर लेवल मैनेजमेंट है उनको क्या करना चाहिए कि ईमेल न्यूज़लेटर उसमें हाईलाइट करना चाहिए कि हाँ बाबा लोअर लेवल के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी कुछ योगदान हमारे कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका भी कुछ योगदान है. द टीम मेंबर हु इनिशियली वॉइस देयर कंसर्न नाउ फील्स लाइक दे वर्क फॉर द कंपनी द वैल्यूज इट एम्प्लॉयज. इसकी वजह से क्या होता है कि जो टीम मेंबर होता है जो लोअर लेवल का जो हम बोलते हैं टीम मेंबर होता है अगर उसने आवाज़ उठाई कि हाँ ये कुछ अच्छा चल रहा है कि तो हम कंपनी के लिए और क्या अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अच्छी तरीके उनके जो वैल्यूज़ है कंपनी एम्प्लॉय एम्प्लॉय के जो वैल्यू है उसको साथ लेकर कंपनी को भी नुकसान हो और उनका भी नुकसान हो उसको ही ध्यान में रखकर यहाँ पे वो काम करते हैं. ओके मिहिर, Mihir, Yes, ma'am. today is no lecture. Anything? No, ma'am. सेकंड लेक्चर कैंसिल हो गया है. ओके ओके, मैं एक्चुअली आपको रिकॉर्डिंग भेजने वाला था. अभी ज्वाइंट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कितने जन हो ठीक है. यहाँ पे? दो ही हम दो ही हैं शायद. ओके. यस मैम. मैं ऑलरेडी ये अपवर्ड कम्युनिकेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हमने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किया था. एम आई राइट? मुझे याद है यस डाउनवर्ड मैम. कम्युनिकेशन कंप्लीट किया था. तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग में अभी थोड़ी देर के बाद भेज देती हूँ. आप बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. लेकिन मैं आपको रिकॉर्डिंग क्योंकि कल लेक्चर मैंने दिया नहीं था और आज थोड़ा सा काम की वजह से थोड़ा सा देरी हो गया इसकी वजह से मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रही है. ठीक है, आप है तो कोई ठीक प्रॉब्लम है नहीं मैम. है. नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके, आगे का ठीक है. देखते हैं. Creates an inclusive environment within the organization. That integrating upward communication practices into the business can help create an inclusive environment. What this means is that every employee, regardless of their role, feels like they are important contributor to the company's success. कि जैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन से मैंने अभी बोला कि अपवर्ड कम्युनिकेशन से क्या होता है, ये जो एक मेथड अपनाई जाती है कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल स्टाफ का ओपिनियन नहीं लिया जाता. तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टाफ भी उनको कंसिडर नहीं करता और जो अपर लेवल है वो भी उनको कंसिडर नहीं करता. लेकिन यहाँ पे क्या बताएंगे, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी रिस्पेक्ट घटेगी नहीं. अगर आप किसी को कंसिडर करेंगे तो आपका कंसिडरेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं. लेकिन क्या होगा, कंसिडरेशन बढ़ेगा कि हर यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉस का वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है या कोई एक एम्प्लॉय का वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग एक साथ जुट के काम करते हैं हर एक का रोल, हर एक का फील कि वो भी एक he is also the individual important contributor of the company success. कि कंपनी को सक्सेस तक पैसे पहुंचाने के लिए, कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए वहाँ पे हर एक जो एम्प्लॉय है उसका योगदान इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एग्जीक्यूटिव encourage employees to voice their opinion about the slogan of the new product. ओके, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है कि कंपनी एग्जीक्यूटिव है तो एम्प्लॉय को एनकरेज करते हैं कि उनका ओपिनियन लेते हैं कि फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो सबको शायद उसका न्यू प्रोडक्ट का उसका जो स्लोगन दिया गया है तो उसका स्लोगन ठीक है कि नहीं, या प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लॉन्च करने के बाद उनको जब टेस्टिंग के लिए दिया जाता है तो वो प्रोडक्ट सही है या नहीं, उसका फीडबैक कैसा है, वो एम्प्लॉय से लिया जाता है. They decide to create the slogan writing contents to use in the promotional stage and employee slogan wins. तो
इस तरह का कुछ हम बोलते कि जैसे हम गेम खेलते हैं वहाँ पे भी जो स्लोगन राइटिंग का कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, मीन्स दैट अपर लेवल staff they are taking that contents for slogan writing among the employees, and after onwards employee slogan wins कि एम्प्लॉयज़ का जो सजेशन आता है कि नहीं ये स्लोगन अच्छा होगा, तो वहाँ पे एम्प्लॉय जीतते हैं। सो दिस हैज एम्प्लॉय फील लाइक दैट दे आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस तरह से एम्प्लॉय को भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ वो भी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का वो भी एक भाग है या पार्ट है। दे आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में अगर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, अगर हमको वहाँ पे पूछा जाता है तो डू वी ऑल्सो फील द सेम थिंग ना, कि हाँ वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फैमिली, दैट्स वाई दे आर आस्किंग अस। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. ओके। तो इसी तरह से कंपनी में भी ये पूछा जाता है। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। हियर 5 एग्जांपल्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे 5 एग्जांपल दिए गए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, दूसरा है फोकस ग्रुप, तीसरा है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे, चौथा है कंपनी मीटिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज सजेशन बॉक्सेस। ओके, नाउ वी विल सी all these point into the details। ओके, अभी हम एडवांटेजेस अभी है हमने देखे थे, तो ये एडवांटेजेस में ये 5 पॉइंट थे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये if performance report, if for example if one company is launching something, okay, then they are giving the testing for that particular launch product to the employees, then the employees can give the positive and negative feedback. Then focus group means in upward communication they are going more in they are giving more attention on the focus, or they are going to more important to the growth, because here lower group and upper group both are working together. Then they are also going to see that employees satisfaction, whether the employee is satisfied with his job or not. Then company meeting, in company meeting if that upper meeting will be held, okay, for example in the organization the upper meeting will be held, then after onward the second or third meeting, that lower level meeting will be held, and after onwards that upper meeting and lower level management will work together or will discuss together. Then the suggestion boxes, that every employee that in the organization the suggestions boxes will be provided there, so every individual what he feels or what she feels they can suggest through the suggestion boxes. Do you understand? Yes, ma'am. Okay. Now we will discuss about the disadvantages of the upward communication. Disadvantages of upward communication means negative acknowledgement. अभी disadvantages देखते हैं कि negative acknowledgement. The good communication may not always be enough to make yourself heard. Your circumstances as well as your audience and timing of the message can influence these processes. Okay, so here if you are very good at a communication, it doesn't mean that you are make enough to heard. Means that if you are a good speaker, it doesn't mean you are a good listener। कि ज़्यादातर हमको ऐसा होता है कि जो ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में वो इतना अच्छे सुनने वाला हो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ हमारी सरकमस्टांसेस, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा ऑडियंस और उसका जो टाइमिंग होता है मैसेज देने का, वो प्रोसेस पे जो हम बोलते हैं कि जिस तरह से हम बोलते वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। कि फॉर एग्जांपल आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे स्कूल या कॉलेजेस में जितना हमको एक एक सब्जेक्ट दिया जाता है, आपके पास 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर एक का टाइम जैसे फॉर एग्जांपल 30 मिनट, आप जब आप स्कूल में थे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कंसंट्रेशन कर सकें उसके टाइम लिमिट पे लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस, कि जैसे आपको याद होगा कि अगर एक टीचर ने 2 घंटा लेक्चर दिया तो आप बोर हो जाते थे। एम आई राइट? एक टीचर ने
2 घंटा लेक्चर लिया तो आप बोर हो जाते थे, एम आई राइट? बोर होते हैं कि नहीं होते? हम लोग होते हैं ना? यस मैम। हाँ, तो उतना आपको टाइम, उसका सरकमस्टांसेस, उतना ऑडियंस, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, यहाँ पे उसमें देखिए कि एडिशनली इवन द क्लियरली deliver the message doesn't prevent the negative acknowledgement. Think of the doctor telling his patient that he has a cancer or that he needs an expensive treatment, even though the message is clear and the patient understands what he has been told, and his reaction may be negative. Just plus, some patients may not understand why the particular treatment, which happens to be quite expensive, is better than the another. Okay, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया तो इसको आपको जल्दी से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ये कहता है कि उसको कैंसर है और कैंसर की ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। ये हम सबको पता है कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो सबसे महंगी होती है। ओके, द मैसेज इज क्लियर, but the person or the patient, he understand what he has told, but his reaction is negative, means उसको ये समझा और माइंड उसका है, that mind is working, yes, mind accept, means what we can say that mind accept, but sometimes हार्ट विल नॉट एक्सेप्ट कि मुझे कैंसर है, अभी आई कैंसर के खर्चे के लिए मैं इतना पैसा इकट्ठा कैसे करूँगा एज अ पेशेंट, कि वो एज अ हम बोलते कि जो बीमार व्यक्ति है वो ऐसा सोचता है। समझा कि नहीं समझा? यस मैम। Okay. Plus, some patients may not understand why the particular treatment, which happens to be quite expensive, is better than the other. कि दूसरे जो डिजीज है उससे ये ज़्यादा कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है या उसका एक्सपेंसेस होता है इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सपोज if the patient may belong to the middle class family or poor family, if the poor family, he will not work on it, कि अगर ही विल नॉट वर्क ऑन इट मीन्स वो अपनी ट्रीटमेंट ही नहीं करवाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ यस मैम। हाँ, लेकिन वो मिडिल क्लास का होगा तो वो सोचेगा ज़रूर कि इतना महंगा क्यों है, या फिर हर जगह इंक्वायरी करेगा कि कहाँ पे थोड़ा सा खर्चा कम हो और जहाँ अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले या कोई जान पहचान वाला हो, तो भी उसको पता चले कि हाँ मैं इससे कराऊंगा तो मेरा ट्रीटमेंट का खर्चा थोड़ा कम हो जाए। एम आई राइट? ऐसा कुछ मिडिल क्लास वाला होगा तो ज़रूर सोचेगा। लेकिन वहाँ पे तो भी ये जो हम बोलते हैं कि सोचने का जो तरीका है कि हाँ माइंड ने उसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ डॉक्टर ने मुझे सही बताया कि मुझे कैंसर है, लेकिन उसका जो हार्ट है कि उसका जो दिल है वो मान नहीं रहे मुझे कैंसर कैंसर कैसे हो सकता है। अगर आपको डॉक्टर ने क्लियर मैसेज बताया कि अगर आपको पता ही नहीं होता तो आपको पता चलता क्या कि हाँ मुझे कैंसर है या कुछ और है? पता चलता? नहीं ना? नहीं ना? यस और नो? नो मैम। हाँ, क्योंकि डॉक्टर के पास हम कभी जाते हैं क्योंकि जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल अभी का कुछ हमको हम बोल रहे हैं कि अभी जो कोविड-19 का चल रहा है, ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल सिंपल सी हमको सर्दी खांसी है या जैसे हम बोलते हैं जनरल में होती है, तो किसी को खांसते देखते हुए भी हमको डर लगने लगता है। एम आई राइट? किसी को खांसते देखते हुए भी हमको डर लगने लगता है। यस कैसे मैम। खांस रहा है, कैसे खांस रहा है, कि कैसे अभी उसको कोविड 19 तो नहीं है, मीन्स दिमाग में एक बार हमको ये विचार तो आ ही जाता है कि उसको कोविड 19 तो नहीं है, अभी ये खांस रहा है, मुंह पे मास्क नहीं लगाया है। तो दैट इज द थिंग। समझ में? मैसेज क्लियर है कि हाँ, फिर उसके बाद उसके जो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाता है तो कभी पता चलता है कि ये तो हम बोलते कि इन्फेक्शन था, या जनरल में जैसे इन्फेक्शन होता है वायरस जैसा होता है वैसा, कोविड 19 का कुछ नहीं है, तभी हम चैन की सांस लेते हैं। एम आई राइट? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Distortion. Upward communication is intentionally distorted. On the occasion, it is found that employees, for their self-interest or uh, to get क्या लिखा है यहाँ पे reliance non-accountability, edit the data or information before it is passed to the superior. Such distortions hampers the real objective of any communication.
समझ में आया? डिस्टॉर्शन मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्शन? डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हुआ? फिर से देखिए, बताओ मैम। upward communication is intentionally distorted. On many occasions, it is found that employees, for their self-interest or to get uh, real from the non-accountability, edit the data and information before it is passed to the superior. Such distortion hampers the real objective of any communication. Distortion का मतलब क्या हुआ? डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि हम बोलते हैं कि थोड़ा सा डिसकनेक्ट जैसा डिस्टॉर्शन, कि जब फॉर एग्जांपल कि बहुत बार ऐसा होता है कि दैट व्हेन एवर upward communication that is going to be held in many occasions that employees for their self interest कि अपने हिसाब से या अपने सरकमस्टांसेस के हिसाब से अपना इंटरेस्ट है कि नहीं, तो ज़्यादातर कभी कभी नॉन अकाउंटेबिलिटी के उसको जो डाटा और इन्फॉर्मेशन देना है एज एन एम्प्लॉय के तौर पे फीडबैक की बात कर रही हूँ, तो वो सुपीरियर को पास कर देते हैं, सुपीरियर को या जैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन में पास कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे सजेशन उनका लिया जाता है ना, सजेशन लिया जाता है, जैसा अभी हमने अगला पॉइंट देखा सजेशन बॉक्स, सजेशन बॉक्स देखा कि नहीं अगला पॉइंट हमने। यस मैम। हाँ, तो उसमें वो जब सजेशन डालते हैं तो कभी कभी नॉन बोलते हैं ना कि नॉन वैलिड वैलिड नहीं होता है, ऐसा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम बोलते कि जिस पे रियली बात करना चाहिए, हाँ, कि जैसे बात होनी चाहिए, घुमा फिरा के बात करना, हम बोलते हैं ना घुमा फिरा के बात करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछ रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप क्यों लेट आए, ओके, व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग लेट, ओके, लेकिन आप मुझे पूरा हिस्ट्री बताएंगे, कल आपने क्या किया, सुबह में आपने क्या किया, व्हाट इज द रीजन, तो आप मुझे घुमा फिरा के बताएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टोर्शन हैम्पर्स। क्या बोलते हैं? डिस्टोर्शन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन डिस्टॉर्शन। डिस्टोर्शन हैम्पर्स द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन, की जैसे कट टू कट हम बात करें या पॉइंट टू पॉइंट हम जब बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन अच्छा होता है। देन अनविलिंगनेस, एम्प्लॉइज आर यूजुअली reluctant to start upward communication. The manager should keep their doors open, but they cannot force the employee to walk in the room. Okay, कभी कभी अनविलिंगनेस, विलिंगनेस मीन्स अपनी इच्छा से, और अनविलिंगनेस मीन्स अपनी इच्छा नहीं, कि एम्प्लॉयज आर यूजुअली reluctant टू स्टार्ट अपवर्ड कम्युनिकेशन, कि कभी कभी फॉर एग्जांपल मैनेजर ने अपना केबिन का जो डोर है वो ओपन रखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप कभी भी घुस जाओ अंदर। समझ में आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हाँ एज मैम। एन एम्प्लॉई आप कभी भी घुस जाओ, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल सर का ऑफिस जैसे ओपन रहता है, ओके, लेकिन जब भी हम बिना काम के हम उनके ऑफिस में जा सकते हैं क्या? Without any work नो मैम can be नहीं। known. So that is the thing. Then fear. Employees often feel that if they communicate their problems to the superiors, it may affect them negatively their efficiency. Okay, suppose sometimes it happens that as an employee, if they are very open to the superiors, then they also think that whatever they are going to share the problems or whatever they are going to share with the superiors, it may affect negatively their inefficiency और efficiency, कि कभी कभी ज़्यादा ओपन होने की वजह से लोग हमको क्या समझने लगते हैं, क्या समझने लगते हैं? इनएफिशिएंट समझने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मैम। नहीं आया? क्या आया? आ गया मैम समझ में। मैं यहाँ पे क्या बोलती, फॉर एग्जांपल मैं अपना गलती बता रही हूँ, ओके, फॉर एग्जांपल मैं अपनी गलती हर बार बता रही हूँ कि मैं अपने इट इज़ माई गुड हैबिट कि मैं अपना गलती बता रही हूँ कि मैं मुझसे गलती हो गई, ओके, बट समटाइम्स दैट वॉट यू आर गोइंग टू से द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट कम्युनिकेशन इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि लोगों का जो सोचने का तरीका है वो वैसे ही रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। वो ऐसे जिसको वैसे जैसे सोचना है वही सोचेगा आपके बारे में। अब वो ऐसा नहीं सोचेगा हाँ कितना ओपन है, वो अपना गलती खुद कबूल कर रहा है, वो ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन
जो दूसरा इंसान है वो क्या सोचेगा, कितनी गलती करता है, कितनी गलती करता है। समझ में है? और बता भी यस रहा मैम। है, बता भी रहे हैं, खुलेआम बता भी रहे हैं, शर्म भी नहीं आती। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। अभी पॉइंट समझ में आया? यस मैम। The complaint placed by the subordinate may be interpreted as a sign of their personal weaknesses or the limitation. जैसे मैंने अभी आपको बोला, the complaint placed by subordinate may be interpreted as a sign of their personal weak and limitation. वही complaint अगर किसी subordinate ने बताई, ओके, तो उसका मतलब क्या निकला जाएगा कि उसकी पर्सनल वीकनेस वो वहाँ पे बता, उसकी लिमिटेशन बता रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand? Yes or no? Do you understand? नो मैम। देखिए, मैंने अभी आपको जैसे पॉइंट बताया था, ऐसे आपको अभी मैंने पॉइंट बताया था कि हर एक का जो सोचने का तरीका उसको हम नहीं बदल सकते। वैसे ही वही बात कि द कंप्लेन रिप्लेस बाय द सबॉर्डिनेट, एम्प्लॉयज की जगह सबॉर्डिनेट होंगे तो उनका इंटरप्रिटेशन कैसा निकाला जाएगा। वो डायरेक्टली सुपीरियर के साथ बात करने गए तो वो सुपीरियर उसके बारे में क्या सोचेगा, उसको काम करना नहीं आता, उसका लिमिटेशन है। समझ में आ रहा है? यस समझ मैम। में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो मेड आते हैं, ओके, हमारे घर में जो मेड आते हैं, ओके, ठीक है, अगर हमको पता है वो कितना काम कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे से उनका एक्सपीरियंस रह चुका है, जितना ओपन वो रहते हैं उतना हम उतना ही ओपन रहते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं, एज अ यस मैम ओनर रखते। रखते हैं। उन्होंने पूरा पूरा का पूरा बता दिया, फिर भी हम क्या सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तो क्या सोचेंगे, हाँ चलो ठीक होगा। लेकिन उसी दिन जब आप बाजार में निकलते हैं और आपका जो हम बोलते हैं मेड है वो किसी कई काम से बाहर घूम रहा है, तो फिर आपका सोचने का तरीका क्या हो जाएगा, सोचने का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। यस चेंज मैम। हो गया। अभी तो मुझे बताए, मुझे मैसेज ऐसा दे कि वो तो बीमार है, लेकिन मैं तो खुद क्या देख रही हूँ, क्या देख रहा हूँ, वो तो बाजार में घूम रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ समझ मैम। में आ रहा है? अगर उसने बता भी दिया सच में कि वो काम नहीं कर सकता, ओके, कि आज मुझे ठीक नहीं है तो मैं काम पे नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, तो फिर 1-2 दिन चला लेंगे हम, लेकिन 8-10 दिन नहीं आने वाले तो, 8-10 दिन नहीं नहीं आने चला वाले तो सकते। नहीं चला सकते। वही कोई बात हो। दूसरा पर्सन रख देंगे हम। हाँ, कोई दूसरा ढूँढ लेंगे या फिर उसको रिप्लेस कर देंगे या उसको नौकरी से निकाल देंगे। हुँ? ऐसा कुछ ज़रूर करेंगे। ठीक है? ओके, आगे देखिए। Bypassing. In the process of upper communication, once if the workers directly approach the topmost authority